Hi guys, hope you all are doing good. So we will be doing previous year question of geography in this video, and this is part 8 of the UPSC previous year question series. And in this video we'll be doing world regional geography, and there will be two parts from world regional geography, and this video will contain maps, mnemonics to remember all the countries surrounding a particular area. So this is going to be really helpful. Please watch it to the end. Do not just flunk in the middle. It's very important series. You should be sincerely watching this. So let's start the video. So first question is from the year 2019, where we need to match the pairs, the sea with the bordering country. And here we have 5 seas: Adriatic Sea, Albania; Black Sea, Croatia; Caspian Sea, Kazakhstan; Mediterranean Sea, Morocco; Red Sea, Syria. So you can see the options, and please pause the video so that we can discuss the answer. So the answer is 1, 3 and 4 only. That means that Adriatic Sea Albania is correct, Caspian Sea Kazakhstan is correct, and Mediterranean Sea Morocco is correct. And option 2 and option 5 are not right. So we will be seeing all these seas and all the neighboring countries of these seas in detail right now. So let's proceed to that. The first river body we are going to talk about is Adriatic Sea, where the mnemonic used is ISCMBA. Okay, so there are 6 countries which are surrounding the Adriatic Sea, and these are I for Italy, S for Slovenia, C for Croatia, M for Montenegro, B for Bosnia and A for Albania. तो ये आप याद रख सकते हैं, और इससे फायदा आपको ये होगा कि just because from a mnemonic अगर आपको एक country दे दिया जिसमें the country starts with the capital D, you will not even take 5 seconds to strike out that option. So that is why mnemonics are important. और अगर आपको सीक्वेंस याद रखना है उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. लाइक अगर आपको 6 कंट्रीज याद हो चुके हैं कि ये क्या है ISCMBA, देन वी कैन प्रोसीड टू द मैप जो है आपका सीक्वेंस देखने के लिए. Okay, so if we just start from the western side, okay, and we go to the other side, then it starts with Italy, and then comes Slovenia, and then comes Croatia, and then comes Bosnia and Herzegovina, and then comes Montenegro, and then at the end it is Albania. और आप देख सकते हैं कि जो एंड है वहां पे एक स्ट्रेट मेंशन है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, और ये जो सी है ये ओपन हो जाती है, उसके बाद ये जो स्ट्रेट खुलती है ये आयोनियन सी की तरफ खुलती है. करेक्ट. तो आप ये एक पिक्चर भी याद रख सकते हैं कि ये जो सी नीचे एड्रियाटिक सी के नीचे कौन सी सी आती है, आयोनियन सी, और वहां पे एक स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो. ठीक है. और आप देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी के थोड़े ऊपर हम लोगों ने एक और सी मेंशन किया हुआ है, दैट इज टिरहेनियन सी. सो यू शुड नो दी सीज ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इफ देयर इज एनी कंट्री एसोसिएटेड, और वहां पे आपको ऐसा एक मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन दे दे, you can give the right answer. So let's proceed to the next river body. The next river body is Black Sea. तो आप यहाँ पे जो निमोनिक यूज कर सकते हैं दैट इज टी एंड बर्गर. सो आप पिक्चर्स के साथ भी देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी दिखाई है क्योंकि इमोजीज में और कुछ था नहीं, बट यू कैन रिमेम्बर ब्लैक टी. ओके. और टी एंड बर्गर से कैसे हम लोग उसको एसोसिएट करेंगे, दैट इज टी इज फॉर टर्की, ओके, एंड बर्गर का बी इज फॉर बुल्गारिया, यू इज फॉर यूक्रेन, आर इज फॉर रशिया, जीई इज फॉर जॉर्जिया, एंड आर इज फॉर रोमानिया, द लास्ट आर. और अगर आप पिक्चर में आते हैं मैप के, तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक सी है उसके वेस्टर्न साइड में 2 कंट्रीज हैं, रोमानिया एंड बुल्गारिया. सो व्हेन यू आर स्टडिंग द टर्म बर्गर, तो आप याद रखिए कि जो 2 एंड्स हैं उस वर्ड का, जो दोनों एंड है बी और आर, वो है रोमानिया और बल्गारिया. ठीक है. ये है आपका वेस्ट साइड. फिर अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं लोकेशंस की, तो बल्गारिया, रोमानिया, और इसके जो ऊपर में है वो है आपका यूक्रेन. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि बर्गर में यू जो आता है बी के बाद वो है यूक्रेन, जो नॉर्थ साइड में है ब्लैक सी के. ठीक है. फिर हम ईस्टर्न साइड में आते हैं, तो कंट्री कौन सी है, रशिया और जॉर्जिया. और आप देख सकते हैं कि जो बर्गर में आर और जी साथ में लिखा हुआ है,
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो एंड के बी और आर हैं वो हैं रोमानिया और बल्गेरिया। यू इज फॉर यूक्रेन जो नॉर्थ में है ब्लैक सी के, और आपके ईस्ट साइड में है रशिया और जॉर्जिया, और साउथ में है टर्की जो है टी। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ब्लैक सी के सराउंडिंग के कंट्रीज एंड द सीक्वेंस देयर। और यहाँ पे मैं कुछ और छोटे छोटे रिवर बॉडीज को पॉइंट आउट कराना चाहती हूँ। दोज आर सी ऑफ मरमरा, अगर आप देख सकते हैं, और सी ऑफ मरमरा कंप्लीटली सराउंडेड है बाय द कंट्री टर्की। ओके, और ये आप याद रखिएगा। और एक ऊपर आप देख सकते हैं, थोड़ा ब्लैक सी के ऊपर एक सी है, दैट इज सी ऑफ आजोव, जो आपका है यूक्रेन और रशिया के बीच में। सो ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं, अगर ये रिवर बॉडीज भी पूछी गई तो आपको याद रहेगा। और एक सी आप थोड़ा नीचे आ जाइए, अगर लेफ्ट साइड में साउथ में, इट इज एजियन सी। और एजियन सी अगर हम कंट्रीज देखें तो वो ग्रीस और टर्की के बीच में है। सो ये थोड़ा थोड़ा आप अगर एक दो बार पिक्चर्स देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट दैट। और मेडिटेरियन सी में बहुत सारे कंट्रीज हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट, सो डोंट लाइक पैनिक राइट नाउ। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट रिवर बॉडी। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट कैस्पियन सी। और आप देख सकते हैं कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो पिक्चर दी है, दैट इज ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी टुगेदर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैस्पियन सी पास में ही है ब्लैक सी के, एंड कैस्पियन सी इज ऑन द right side of Black Sea. So the mnemonic we are going to use for Caspian Sea is तारीख, and इसीलिए मैंने वहाँ पे सनी देओल का पिक्चर भी लगाया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ताकि आपको याद रहे कि कैस्पियन सी से तारीख को याद रखना है हमें। ओके, where T is for Turkmenistan, A is for Azerbaijan, R is for Russia, I is for Iran, and K is for Kazakhstan। और अब हम देखेंगे कि जो सीक्वेंस है कंट्रीज के वो कैसे हैं। तो कैस्पियन सी में अगर हम जाते हैं तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी देयर आर टू कंट्रीज, दैट इज रशिया एंड अजरबैजान। तो हम अगर क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि, या फिर लेफ्ट टू राइट जो भी बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। सो अजरबैजान एंड देन इट कम्स रशिया, देन कम्स कजाकिस्तान जो ऊपर में है एक्चुअली नॉर्थ में, और आपका फिर आते हैं हम लोग ईस्टर्न साइड में जहां पे है आपका तुर्कमेनिस्तान। सो कजाकिस्तान इज इन द नॉर्थ एंड इन द ईस्टर्न साइड, काफी बड़ा एरिया लेकर रखा है। फिर ईस्टर्न साइड में साउथ में वी कैन सी तुर्कमेनिस्तान, और एकदम से प्रॉपर साउथ में है ईरान फॉर कैस्पियन सी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 5 कंट्रीज हैं अराउंड कैस्पियन सी, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ओके, दैट इज द सीक्वेंस। सो यू कैन रिमेंबर दिस सीक्वेंस, लेकिन मैं फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने इंफॉर्मेशन को एनहांस करिए, एक बार में सारा कुछ मत डालिए सर में, इट गेट्स ओवरलोडेड। सो पहले आप निमोनिक से ये कंट्रीज याद कर ले कि आपकी कंट्रीज कौन सी हैं पास में, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि आपसे सीधे बस मैच द फॉलोइंग में कंट्रीज पूछ लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में भी पूछा था। सो देयर यू विल जस्ट नीड टू नो कि कौन से कंट्रीज हैं वहां पर, दैट इज इनफ। अगर आपको अरेंज करने देते हैं देन यू नीड टू नो द सीक्वेंस एज वेल। सो जस्ट लेयर इट अप वन बाय वन, एक बार में सब कुछ मत करिएगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट इज द बिग वन एंड दैट इज मेडिटेरेनियन सी। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, एंड दैट इज लाइक हम पहले देखेंगे कि जो आपका यूरोपियन पोर्शन है, वहाँ पे आप देखिए, एकदम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से शुरू करते हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड आ जाइए, बिल्कुल लेफ्ट। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज देयर। वहाँ पे आप देखिए स्पेन से शुरू होती है हमारी कहानी, तो स्पेन से जाएंगे हम कहाँ, फ्रांस, फ्रांस से जाएंगे हम इटली, इटली से जाएंगे हम स्लोवेनिया, स्लोवेनिया से जाएंगे हम क्रोशिया, क्रोशिया से जाएंगे हम बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और बोस्निया एंड हर्जेगोविना से हम जाएंगे मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो से हम जाएंगे अल्बानिया, और उसके बाद आएगा ग्रीस, ठीक है। उसके बाद आएगा टर्की, टर्की के बाद है नहीं सीरिया, टर्की के बाद है सीरिया। और एक चीज याद रखिएगा कि 2 आइलैंड कंट्रीज हैं मेडिटेरेनियन सी में, वो है आपका सिप्रस और माल्टा। माल्टा आप देख सकते हैं एकदम सेंटर में है माल्टा, ठीक है। आप पॉज कर लीजिए और ढूंढ लीजिए, अगर आपको अभी नहीं मिल रहा हो तो डोंट पैनिक। ओके, सो देर आर 2 आइलैंड कंट्रीज,
सिप्रस जो आपको एकदम ईस्टर्न साइड में दिख रहा है और माल्टा इज इन द सेंटर। ठीक है, तो सीरिया, फिर आपका आता है लेबनान, फिर लेबनान के बाद इजराइल, इजराइल के बाद आता है स्विस कनाल। जस्ट टू कीप दैट कि स्विस कनाल है बीच में, नो दैट, नॉट दैट कि आपको स्विस कनाल पूछेंगे वहां पे बीच में, वैसे पूछ भी सकते हैं, आई डोंट नो। सो इजराइल, इजराइल के बाद आएगा आपका इजिप्ट। अब हम आ गए अफ्रीका में, और इजिप्ट, then it is Libya, then it is Tunisia, and then Algeria, and then Morocco. So this is how the sequence goes. और मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्टिकुलर स्लाइड पे आप 10 मिनट्स देना चाहते हैं, 15 मिनट्स देना चाहते हैं, इट्स ऑल योर्स। जस्ट स्टॉप हियर, टेक योर टाइम, एंड देन यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि अफ्रीका के कंट्रीज के लिए हमने एक निमोनिक रखा है, एशियन कंट्रीज के लिए हमने एक निमोनिक रखा है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है कि सारी कंट्रीज एशियन नहीं है, बस उस एरिया के हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए मुझे कोई निमोनिक नहीं मिला, अगर आपको मिलता है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, इट विल रियली हेल्प ऑल ऑफ अस। और तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आप देखिए कि हमने ऑलरेडी एड्रियाटिक सी कवर किया था, तो उसके वजह से आई थिंक वी नो दैट पार्ट, जो इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया है, वो पार्ट एक्चुअली डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कंट्रीज के नाम थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, करेक्ट। तो ये चीजें हमें थोड़ी, अगर यहाँ वाला पार्ट हमें याद हो जाए एड्रियाटिक सी में ही, तो ये मेहनत हमें यहाँ नहीं करनी पड़ेगी। फिर ये कंट्रीज इजी होते हैं याद रखना, कि स्पेन है, फिर फ्रांस है, फिर इटली है। फिर अगर वो 5 कंट्रीज आपको याद आ जाते हैं, तो फिर ग्रीस है, फिर टर्की है, ये सीक्वेंस थोड़ा इजी हो जाता है। फिर सीरिया, सीरिया आपका हमें ऑलरेडी थोड़ा पता होता है, तो एक होता है ना, आप अगर ग्रीस टर्की तक पहुंच गए तो फिर सीरिया, फिर लेबनान, इसराइल, ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि किसके बाद कहाँ पे कौन सा लोकेशन है। तो याद रखिएगा कि इट इज SLI, ओके। तो सीरिया है, फिर लेबनान है, फिर इजराइल है। And then comes the African part, and that is, I think, very easy to remember. So we will see that in the next slide. So here we can see the African countries surrounding Mediterranean Sea, and there is a mnemonic metal for this. Okay, M is for Morocco, E is for Egypt, T is for Tunisia, A is for Algeria, and L is for Libya. तो अगर अभी आप लेफ्ट टू राइट देखने की कोशिश करें, तो फर्स्ट आता है आपका मोरक्को, देन कम्स अल्जीरिया, देन कम्स ट्यूनीशिया, then comes Libya, and at the end it is Egypt. So ये आपको बस 5 कंट्रीज याद रखने हैं मेटल, और ये आप इससे आप याद रख सकते हैं। अभी इजिप्ट आपको याद रहना चाहिए, आई थिंक दैट कम्स ऑन द राइट साइड, और सबसे लेफ्ट साइड में आपका मोरक्को रह जाता है। तो बीच में हमारा अगर एम और ई हमारा कवर हो गया, तो बचता है क्या, टल, ओके, TAL। सो टी आता है आपका, ट्यूनीशिया आता है बीच में, और आपके दोनों साइड्स कौन से हैं, अल्जीरिया एंड लिबिया। तो ऐसे करके आप थोड़ा धीरे धीरे इसको याद कर सकते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, बीच में छोटा सा ट्यूनीशिया, देन लिबिया, एंड देन इजिप्ट। So this is the 5 African countries which is surrounding Mediterranean Sea. Next we will see the Asian area. Okay, it may contain the European countries as well, but we will mention it as Asian countries just to signify the reason which we are talking about. So here you can see that we have written the Asian countries surrounding Mediterranean Sea, but these countries all are not Asian, but it is in the Asian region. So you can remember कि यहाँ पे जो countries हैं, उनको आप याद रख सकते हैं कौन से निमोनिक से, सी लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे सी इज फॉर सिप्रस विच इज एन आइलैंड कंट्री, एल इज फॉर लेबनान, आई इज फॉर इजराइल, एस इज फॉर सीरिया, एंड टी इज फॉर टर्की। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिप्रस है और टर्की है, ये दोनों ही आपके एशियन कंट्रीज नहीं हैं, और लेबनान, इजराइल, सीरिया, ये 3 ही आपके एशियन कंट्रीज हैं।
सो यू कैन रिमेम्बर कि ये जो एशिया रीजन है इसके साइड में 5 कंट्रीज हैं जिनका निमोनिक है सी लिस्ट। ओके, सो आप इससे ये चीज याद रख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रहना चाहिए दैट इज कि 2 आइलैंड कंट्रीज हैं मेडिटेरेनियन सी में, और वो हैं आपके माल्टा और सिप्रस। और आप एक देख सकते हैं यहाँ पे सिसिली भी है, सो यू कैन रिमेम्बर दिस एज वेल। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट question, I think. Okay, no. Red Sea was left. तो रेड सी के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे? यस डेस। ओके, 6 कंट्रीज हैं यहाँ पर, तो आप यस डेस याद रख सकते हैं या फिर येस्टरडे से यस डेस याद रख सकते हैं, जैसे भी करिए, आपको बस यस डेस याद रहना चाहिए। ओके, सो यस में आपका आता है वाई फॉर येमेन। येमेन अगर आप देखें तो नीचे होता है बिल्कुल, ऑन द राइट साइड यू विल सी येमेन है नीचे में। और ई इज फॉर इजिप्ट, एस इज फॉर सुडान। इजिप्ट आपको दिख सकता है लेफ्ट साइड में, अगर आप देखिए इजिप्ट तो हमें पता ही है, उसके नीचे है आपका सुडान। देन डेस में आता है डी इज फॉर जिबूती। आप जिबूती थोड़ा नीचे है, अगर आप देखिए एरित्रिया है, एरित्रिया के नीचे है जिबूती। देन ई इज फॉर एरित्रिया एंड एस इज फॉर सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये वाला मैप अगर आप थोड़ा सा याद कर ले, रेड सी क्योंकि काफी कॉमन है, हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, तो ये आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। इसमें आप ऐसे याद रखिए कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें आपको 4 कंट्रीज याद रखने हैं, इजिप्ट, सुडान, इरित्रिया, जिबूती। और इधर आपके पास 2 कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया और यमन। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर द 6 कंट्रीज। और इसके लिए निमोनिक जो आप याद रख सकते हैं, जिससे आप याद रख सकते हैं पहले तो कि कौन से कंट्रीज हैं जो सराउंड करते हैं रेड सी को, उसके बाद यू गो फॉर द सीक्वेंस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। लेट्स प्रोसीड। So this is the next question from the year 2018, where we have to map the region sometimes mentioned in the news to the country. And there are 4 regions mentioned here, that is Catalonia from country Spain, Crimea from country Hungary, Mindanao from country Philippines, and Oromia from Nigeria. So you can pause the video and we'll discuss the answer. So the answer is option C, that is 1 and 3 only. So यहाँ पे कैटलोनिया स्पेन सही है, मिंडानाओ फिलीपींस सही है, but 2 and 4 are not right. अभी क्रीमिया अगर आपने कभी भी पढ़ा है तो आपको याद होगा कि क्रीमिया रशिया से रिलेटेड है, क्योंकि रशिया ने उसको यूक्रेन से एनेक्स किया था और इसीलिए ये जगह काफी पॉपुलर है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो पहले ही हम स्ट्राइक कर सकते हैं, इवन हमें कोई और कुछ नहीं पता। तो आप अगर सेकंड को स्ट्राइक कर दें तो ए और डी खत्म हो जाता है, बचता है बी और सी। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 3 and 4 ओनली है, 1 and 3 ओनली है, तो 3 के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि 3 इज ऑब्वियसली राइट, विच इज मिंदानाओ फिलीपींस। अभी कैटलोनिया स्पेन वाज वेरी मच इन न्यूज एंड इज क्वाइट पॉपुलर। तो अगर आप ये थोड़ा आपको याद हो कि कैटलोनिया स्पेन से था, तो आप ये इजीली मार्क कर सकते हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, और जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि जो ओरोमिया कंट्री है और ओरोमिया रीजन है वो आपकी इथोपिया कंट्री से रिलेटेड है। ओके, सो कैटलोनिया इज फ्रॉम द कंट्री स्पेन, Crimea is from Russia, and Mindanao is from Philippines, and Oromia is from Ethiopia. So this is the answer you should know. Next question is from the year 2018. Which of the following has or have shrunk immensely or dried up in the recent past due to human activities? First, Aral Sea. Second, Black Sea. Third, Lake Baikal. So select the correct option using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 2 only, 1 and 3 only. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is 1 only. That is, it is only Aral Sea which is drying immensely due to human activities. अभी अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, then only you can opt this question. बिना पढ़े there is no, I think, criteria which can help you in getting to the answer.
तो अगर आपने पढ़ा है कभी भी कि एरल सी के बारे में काफ़ी इश्यूज उठते रहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइड अप हो गया है। आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो डॉटेड एरिया दिखाया है ये पहले पूरा एरल सी था, लेकिन अभी ये सूख कर बस इतना सा रह गया जितना ब्लू दिखा रहे हैं। तो ये इमेंसली ड्राई हुआ है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड दिस हैज बीन इन न्यूज़। लाइक आप अगर एरल सी को गूगल करेंगे और देखेंगे तो बहुत सारी न्यूज़ है जिसमें ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली मेंशन रहता है कि एरल सी सूख रहा है सूख रहा है। So that is why this becomes, I think, important from the current affairs views. Okay, so yeah, that is the answer. You should know about it. So let's proceed to the next question. ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम अगर थोड़े से लेक्स के बारे में देख लें तो लेक बाइकल आप देख सकते हैं एकदम ऊपर राइट साइड में। लेक बाइकल इज इन रशिया, ठीक है। और कैस्पियन सी हम लोग देख चुके हैं। डेड सी जो है आप देख सकते हैं ये सऊदी अरेबिया के ऊपर वाला जो जगह है वहाँ पे डेड सी है। फिर आप बाकी अफ्रीका में आप देख सकते हैं लेक चाद है, लेक विक्टोरिया है, लेक टंगनयिका है, लेक मालवी है। Then in South America, you can see Lake Titicaca, which is quite popular, and Lake Maracaibo as well. फिर आपका वो पनामा वाले रीजन में आप अगर आप देखिए तो लेक निकार केगुआ होगा, आई थिंक निकारागुआ, आई डोंट नो। सो निकारागुआ आई थिंक सही होगा, आई होप सो। आप प्लीज बताइएगा इफ दिस इज द राइट नेम और द नेम इज निकार केगुआ, क्योंकि मुझे जितना याद है निकार केगुआ होना चाहिए, सी इज मिसिंग। एंड देर आर ग्रेट लेक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे ये लेक्स आपको पता होने चाहिए, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगान एंड एरी। दीज आर द ग्रेट लेक्स। और फिर ऊपर में ग्रेट स्लेव लेक भी है। So these are some lakes which you should know. You can pause the video and you can just have a look at all the lakes, important lakes in the world. और ऑस्ट्रेलिया में भी एक लेक है, लेक आयर। So yeah, you can just have a look at these lakes. Okay, next question is from the year 2018. Towns sometime mentioned in news and you have to map it to the country. So Aleppo, Syria, Kirkuk, Yemen, Mosul, Palestine, Mazari Sharif, Afghanistan. Fully current affairs question hai ye. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option B, that is 1 and 4 only. मतलब एलेप्पो सीरिया सही है, मज़ारी शरीफ अफगानिस्तान सही है, और किरकुक और मोसूल जो हैं ये दोनों प्लेसेस इराक से हैं, यमन या पैलेस्टाइन से नहीं है। अभी आप अगर थोड़ा सा भी आपको याद हो तो ये सब जगह जो है ये सिविल वॉर और ये सब चीज़ के लिए काफ़ी इन न्यूज़ रहती है सीरिया वगैरह में। तो इसीलिए दीज प्लेसेस आर लाइक दे रिमेन इन न्यूज़, तो इसीलिए वो जो होता है ना प्लेसेस इन न्यूज़, ये आपको देखते रहना चाहिए इन मैप्स। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्लेस बिकम इम्पोर्टेंट। तो आप अगर कोई भी चीज़ जो आप करंट अफेयर्स की फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे कोई प्लेस है जो मेंशन है तो नॉर्मली करंट अफेयर्स मैगजीन्स में मेंशन कर देते हैं। सो या आई थिंक यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर। और बाकी तो देखो हवा से तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, बट आई थिंक दीज नॉर्मली यूपीएससी जब ये सब क्वेश्चन पूछती है तो थोड़ा सा वैसे ही जगह से पूछती है जो आप कर सकें ऑप्ट काइंड ऑफ। बहुत ज्यादा टफ नॉर्मली नहीं रहता है, बट इट कैन ऑब्वियसली गो हेवायर। सो या लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is from the year 2018. Very recently, in which of the following countries have lakhs of people either suffered from severe famine or acute malnutrition or died due to starvation caused by war or ethnic conflicts? Option A, Angola and Zambia. Option B, Morocco and Tunisia. Option C, Venezuela and Colombia. Option D, Yemen and South Sudan. So please pause the video and I'll discuss the answer. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, यमन एंड साउथ सूडान। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप थोड़ी सी कंफर्ट के साथ ऑप्ट कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी जो भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं आप बस उसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 का है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो बट ये जो प्लेसेस हैं ये क्वाइट इन न्यूज़ रहती हैं अभी भी, बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये काफ़ी सॉल्व नहीं हुए हैं अभी तक। सो या दिस इज लाइक ऑन गोइंग। तो आपको पता होना चाहिए कि येमेन और साउथ सुडान में जो है काफ़ी फेमीन, मैल न्यूट्रिशन और ये सब की वजह से
बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी एंड ड्यू टू स्टारवेशन उन्हें खाना नहीं मिला एंड दिस वाज कॉज्ड ड्यू टू द वॉर और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन विच इज प्रिवेलिंग इन दैट रीजन. So this is the answer. Let's proceed to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम करंट अफेयर्स. तो आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में काफी क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है. सो आई थिंक अलोंग विद स्टैटिक यू नीड टू फोकस ऑन द मैप पार्ट. जो और जो रीजंस इन न्यूज हैं आप उनके बारे में थोड़ा जान के रखिए क्योंकि वो क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. सो बेसिकली दीज आर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, नॉट रियली ज्योग्राफी क्वेश्चन, बट या वी कैन कैटेगराइज देम इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लाइक करंट अफेयर्स का खुद का तो कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, so there has to be some subject to which that current affair is associated. So yeah, this is associated with geography, so we'll discuss that in geography. Okay, so 2018 question is the term two-state solution is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of first is China, second is Israel, C is Iraq, and D is Yemen. So please pause the video and I'll discuss the answer. And I'm hoping that you do not make this answer wrong. It should be right. Okay, so please pause the video. सो द आंसर इज ऑप्शन बी इजराइल. और अगर आपने कभी भी पढ़ा है इसके बारे में तो यहाँ पे जो टू स्टेट सोल्यूशन की हम बात कर रहे होते हैं वो ये है कि ये टू स्टेट सोल्यूशन ये प्रपोज करती है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाएं और अपने आपस की झगड़े बंद करें. और कहीं ना कहीं लाइक इन टॉक्स जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने भी कहा है कि या आई काइंड ऑफ सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन, बट जो प्रैक्टिस में वो काम करते हैं वो ऐसा दिखाता नहीं है. और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन लोगों के बीच काफी कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इट्स नॉट दैट सिंपल टू अचीव टू स्टेट सोल्यूशन. और हमें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज लाइक कंटिन्यूअसली सपोर्टेड इसराइल. और रिसेंटली तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल का लाइक कैप्चर ऑफ जेरूसलम को भी काइंड ऑफ वैलिडेट कर दिया और एम्बेसी को शायद ट्रांसफर कर दिया जेरूसलम, जो एक्चुअली पैलेस्टाइन भी मानता है कि उनका कैपिटल है. तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर. दोनों एक ही जेरूसलम को अपने पास रखना चाहते हैं, कोई देना नहीं चाहता. और इसराइल ने फोर्सफुली बहुत सारी जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है. आप देख सकते हैं कि पैलेस्टाइन बस उतने से एरिया में है जहाँ पे ग्रीन एरियाज हैं. ओके. और इसराइल भी क्या है कि पैलेस्टाइन पे ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उन्होंने लाइक गाजा स्ट्रिप को जब दिया था तो उनको लगा था कि सब मिलजुल के रहेंगे, बट पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो है उन्होंने फिर गाजा स्ट्रिप पे पूरा अपना कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से इसराइल ने भी ट्रस्ट खो दिया कि नहीं हम अब हम भी अपना अपना कब्जा जमाएंगे. और पैलेस्टाइन भी ऐसे है कि दे डोंट ट्रस्ट लाइक द इसराइल गवर्नमेंट बिकॉज बहुत सारी वायलेंस हुई है इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से on the regions like occupied by Palestinians. और इसराइल का है कि they want to keep everything kind of, they also want to remain a Jewish country which they are currently and a democracy, and they also want to have peace with Palestine. तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो पा रही हैं और इसीलिए इन लोगों में कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं. वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप जैसे आप देख सकते हैं, जो अभी गाजा स्ट्रिप तो फुल्ली पैलेस्टाइन के अंदर है, वेस्ट बैंक में कुछ एरियाज पैलेस्टाइन के अंदर है, कुछ एरिया इसराइल के अंदर है. तो ये सारी चीजें ही कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रही हैं, इनके अभी तक कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आई है. सो दिस इज एन ऑनगोइंग इशू एज वेल. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from the year 2017. The Mediterranean Sea is a border of which of the following countries? Jordan, Iraq, Lebanon, Syria. तो आप ऑप्शंस देख लीजिए एंड पॉज कर दीजिए वीडियो को, मैं आंसर डिस्कस करती हूँ. बहुत ही सीधा सवाल अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको कहा था कि जो आपका एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वो एशियन साइड वाले कंट्रीज की बात हो रही है, करेक्ट. और हमारा निमोनिक क्या था? सी लिस्ट. तो सी लिस्ट में जे तो आता ही नहीं है, तो वन तो खत्म हो गया ऐसे ही. ठीक है. तो आपका वन अगर मेरा चला गया तो ए और डी गॉन है, करेक्ट. और आपका इराक तो नहीं था, तो दैट इज वाई टू इज ऑल्सो गॉन.
एंड द आंसर इज 3 and 4 ओनली, और हमें पता है कि सीरिया होगा। सो बेसिकली अगर ए और डी हमने हटा दिया है और बी और सी ऑप्शन ही हमारे पास है, और हमें पता हो कि सीरिया, आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो सी लिस्ट में सीरिया था, तो आप 3 and 4 ओनली को इजीली कर सकते हैं। और हम लोग एक बार फिर से वो निमोनिक देख लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, ओके, इराक मेंशन था वहां पे, हाँ, बट यहाँ पे कौन सी कंट्री है, इजराइल, ओके। सो सी लिस्ट में हमारी कौन सी कंट्री थी, सिप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड टर्की। तो ये आपका कंट्रीज है, और अगर आपको ये याद होता तो वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता। तो मेडिटेरेनियन सी से बहुत प्यार है यूपीएससी को, यू शुड नो दैट सी वेरी वेल। Next question is from the year 2015. The area is known as Golan Heights, sometimes appears in the news in the context of the events related to A. Central Asia, B. Middle East, C. Southeast Asia, D. Central Africa. So please pause the video and we'll discuss the answer. So the answer is Middle East, और आप मैप में देख सकते हैं कि गोलन हाइट्स जो है वो आपका है इजराइल और सीरिया के बीच में, और यहाँ पे वही झगड़े चल रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए कि ये जो थोड़ा सा लाइट क्रीमिश एरिया है ये इजराइल ने ऑक्यूपाई करके रखा है फ्रॉम 1967, और आप जो थोड़ा ज्यादा डार्क वाला पोर्शन है ये एरिया ऑफ सेपरेशन है, और ऐसे ही चल रही है चीजें। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from the year 2015. Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? Syria, Jordan, Lebanon, Israel. Again, this question can be solved very easily अगर आपने मेरा वीडियो देखा है. So yeah, please pause the video and I'll discuss the answer. So फिर से हम सी लिस्ट को याद करेंगे। आप एशियन सारी कंट्रीज को याद कीजिए, और आप देखिए कि सी लिस्ट में जे तो है ही नहीं, तो जॉर्डन नहीं है, और हमें वही पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी। सो स्ट्रेट 10 seconds भी नहीं लगने चाहिए to strike this answer if you remember the C list mnemonic. So yes, this is the answer. Jordan is the answer. और एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं एशियन कंट्रीज, तो बेसिकली द एशियन रीजन कंट्रीज, बिकॉज सारी कंट्रीज एशियन नहीं है, इसमें से सिप्रस, टर्की, ये सब ईयू वाली कंट्रीज हैं। सो या, सो सिप्रस इज फॉर सी, एल इज फॉर लेबनान, आई इज फॉर इजराइल, एस इज फॉर सीरिया एंड टी इज फॉर टर्की। और अगर हम मैप में देखें तो टर्की सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है सीरिया, उसके बाद आता है सिप्रस, उसके बाद आता है लेबनान, उसके बाद आता है इजराइल। सो these 5 countries are in the Asian region. So yes, you should know this. Next question is from the year 2015. The substitution of steel for wooden floors in agricultural production is an example of labor augmenting technological progress, capital augmenting technological progress, capital reducing technological progress, and D, none of the above. जी हाँ, जितना आपको शौक लगा है मुझे भी लगा है, मुझे भी लग रहा था ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बट क्योंकि यहाँ आई थिंक स्टील मेंशन था तो ये ज्योग्राफी सेक्शन में मेंशन कर दिया था जहाँ पे मैं देख रही थी कंपाइलेशन में, सो आई जस्ट केप्ट इट हियर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन वी कैन डिस्कस द आंसर। सो द आंसर इज कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम स्टील को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं फॉर वुडन फ्लॉर्स, तो ऑब्वियसली वुडन फ्लॉर्स सस्ते होते हैं और स्टील महंगा होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, तो कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गया ये। यहाँ पे हम लेबर को तो ऑगमेंट कर नहीं रहे, कैपिटल को घटा भी नहीं रहे हैं, करेक्ट, हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा पैसे लगेंगे स्टील में जितना हमें वुडन जो कार्ट्स होते हैं उसमें लगते हैं। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर कैपिटल का मतलब आपको नहीं पता है तो कैपिटल इज एनीथिंग विच यू लाइक इन्वेस्ट, एक इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं एक बिजनेस में वही आपका कैपिटल है, करेक्ट। चाहे और कैपिटल में आप जो एसेट है, जो आपका मकान अगर आप कुछ खरीदते हैं जिसमें आप अपने ऑफिस को खोलते हैं वो भी,
आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो आपका कैपिटल है। आपका जो भी एक टेबल चेयर से लेकर जो भी चीजें हैं वो सब कैपिटल के अंदर आती हैं। ओके, एनीथिंग एनीथिंग विच यू यूज इन योर बिजनेस, दैट इज योर कैपिटल। ओके, सो या दैट इज कैपिटल। लेट्स प्रोसीड। And let's proceed to say thank you guys, because ये जो खुशी आप देख रहे हैं इस बच्चे के चेहरे पे, यही खुशी है अभी मेरे चेहरे पे to finish this video. Yes, and if this happiness is like on your face as well कि यार बहुत कुछ सीख लिया, अब तो फोड़ देंगे, so yeah, I want that happiness. Okay, और आप अगर फील कर रहा है कि this is too much for a video, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जाइए थोड़ा रेस्ट कीजिए, 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए एंड वॉच दिस वीडियो अगेन। क्योंकि आप जब रिपीटेडली एक चीज को तुरंत देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम तक आप उसको रिटेन कर पाते हैं। ओके, सो एनीथिंग इफ यू स्टडी लाइक उसको आप अगर थोड़ा जल्दी रिवाइज कर लेंगे, फर्स्ट जो रिवीजन होता है, तो इट विल स्टे देयर इन योर माइंड फॉर लॉन्गर टाइम। और मेडिटेरियन सी के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, हमने कितने प्यार से आप देखिए उसको डिवाइड किया एशियन अफ्रीकन रीजन में, और फिर बाकी आपके लिए यूरोपियन रीजन में आप एड्रियाटिक सी में याद कर लेते हैं काफी चीजें। तो देखिए आप चीजों को सिंपल बना सकते हैं तोड़ तोड़ कर। अगर आप एक बार में मेडिटेरियन सी देखेंगे तो इट विल बी हैवॉक, लेकिन अगर आप हम उसे 3 भाग में तोड़ देते हैं तो वो उतना बड़ा नहीं लगता है। सो दिस इज हाउ यू मेक थिंग्स सिंपल। अगर आपको कोई चीज टफ लग रहा है याद करने में तो ब्रेक दैट डाउन। ओके, आप एक बार में उस चीज को याद मत करो। इसीलिए मैं बार बार आपको एक चीज बोलती हूँ कि the study pattern which I actually propose in my channel is, do not focus on getting a PhD, focus on whatever you are studying, whatever वहां जो 2 लाइन लिखा है आप उस 2 लाइन को बस अपने अंदर घुसा लीजिए। ठीक है, अगर आपको वो 2 लाइन पता है, आप फिर कहीं और जब कोई और चीज पढ़ेंगे तब आप ऑगमेंट करना, आप इंक्रीज करना अपने नॉलेज को जो आपके पास ऑलरेडी है उसके ऊपर। डू नॉट थिंक कि जब आप एक चीज पढ़ रहे हैं तभी आप पीएचडी कर लें और आप 2-3 सर्चेस मार रहे हैं, 10 सर्चेस मार रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। डू नॉट डू दैट। ओके, बिकॉज दैट विल ओनली लाइक मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपका बहुत टाइम चला जाता है इन चीज़ों में, आप रियलाइज नहीं करते, और जो आउटपुट आप इससे निकाल के लाते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवॉक नहीं होगा। क्योंकि यूपीएससी इज नॉट ओनली इट्स नॉट अबाउट गेटिंग पीएचडी, इट्स अबाउट वाइडर कवरेज ऑफ थिंग्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। आप जब कोई एक मटेरियल को अच्छे से पढ़ते हैं, एटलीस्ट आपका फोकस बस इतना होना चाहिए कि यहाँ पे जो एक एक लाइन लिखी है वो मुझे पता होनी चाहिए। यहाँ से कुछ भी एक लाइन भी जो आ रहा है वो मेरा छूटना नहीं चाहिए। दैट शुड बी योर सोल एम। आप मेरे अगर वीडियोस देख रहे हैं, यू शुड लाइक मेक सर्टेन कि जितनी चीजें वीडियो में हैं यू शुड नो दैट फुल्ली। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चीजें याद नहीं है, वॉच इट अगेन। ठीक है, आप पॉज करके देखो, रुक रुक कर देखो, लेकिन आप इंश्योर करो कि जब आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई एक चीज देख रहे हो, वीडियो को सुन रहे हो, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, और अगर मैं एक चीज और बोल रही हूँ, मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे भी कंटेंट ला रही हूँ, और मेरे कंटेंट में एक चीज है कि मैं सारा जो चीज वहां पे मेंशन्ड है उस बुक में, आई डोंट लीव एनीथिंग इम्पोर्टेंट आउट देयर। ठीक है, अगर मैं उस चीज को थोड़ा शॉर्ट बना रही हूँ, इट इज ओनली टू सेव योर टाइम, इट इज नॉट टू लाइक वेस्ट योर टाइम। लाइक आप बहुत सारी चीजें होती है जो ऑब्वियस होती हैं, और हम लोग उसी चीज को पढ़ पढ़ कर सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया। तो वीडियो में क्या होता है कि आई ब्रिंग योर फोकस टू द पॉइंट्स विच नीड्स टू बी फोकस्ड, और यही आपको हेल्प करता है। आपके लिए एक मेंटोर मैं नहीं हूँ, मैं एक कंपेनियन हूँ जो आपको बस एक फोकस दे रहा है कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। आपकी मेहनत को थोड़ा कम करना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, सो बट यू हैव टू हेल्प मी हियर बिकॉज यू हैव टू वॉच द वीडियो। ओके, आप अगर देखेंगे नहीं तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप अगर बस ये देख के खुश हैं कि वाओ लक्ष्मीकांत के 5 वीडियोज हैं, तमिलनाडु के इतने वीडियोज हैं, बट आप अगर उसे देख नहीं रहे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। और अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, इट इज डेफिनेटली डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास दिन भर में आधा एक घंटा ना हो। ठीक है, अगर आप हर दिन 1 घंटा भी इस चैनल को दें, आई कैन एश्योर यू कि आपके पास जो कंटेंट है वो इनरिच ही होगा। आप लूज तो नहीं करोगे, देर इज नथिंग टू बी लाइक लॉस्ट। आप मेरे इस बकवास को ना सुनो चलेगा, लेकिन आप कंटेंट वाला पार्ट को जरूर पूरे डेडिकेशन से देखिए। ओके, सो या यू कैन मिस माई बकवास, नॉट एन इशू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा बकवास तभी आप सुनो, अगर आपको रिलैक्स फील होता है इसको सुनकर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए,
Please skip this part and go to the content. एकदम जरूरत ही नहीं है. Okay? Whatever works best for you, do that. And I only want the best for you guys. Okay? So thank you so much for watching the video. We'll meet in the next video. Bye bye.